Okay, so let's start once again. Okay, and welcome once again. Today we are going to revise data frame. Okay, so let's proceed. If you have problem, you will unmute yourself and you will ask. See, data frame अपने आप से पूछने का कोशिश करना. You introspect yourself, what you know. Okay, so this frame is saying that it is two-dimensional data structure. Okay, it is two-dimensional data structure. Obviously, when it is two-dimensional, it will store heterogeneous data. Okay, it will store heterogeneous data. Okay, then size is mutable, labeled, access. Okay, then you come here. You can see it is two-dimensional data structure, hence it has got the columns and it has got the rows. Then how to create the data frame? In order to create the data frame, we have a constructor called data frame. Okay, we have a constructor that is called data frame constructor. We make use of this. Okay, we make use of this constructor with the help of data frame. Okay, first we need to import the data frame. We need to import the pandas, and through pandas we use the constructor data frame. These are the parameters. First parameter is data. Okay, first parameter is data. ठीक है, माइंड इट. इस डेटा जो पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो इस डेटा में हम लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, एरे का भी यूज कर सकते हैं, सीरीज का भी यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट, इट इज नेक्स्ट इंडेक्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंडेक्स एंड देन वी हैव कॉलम, then we have column, dt type and copy. Okay, see here data, we can take various form of data like array, like series, like map, list, dictionary, constant and any other data frame even also. Index, for the row level, index to be used for the resulting frame is optional and default is np.arrange n if no index is passed. So what I have told you, if you do not pass any index, it will start from 0 and it will go up till the number of elements. Okay, next we have the column. Column label is the optional. Okay, it is optional. And then is the data type. Data type it is also optional by default. It takes the integer or the float data type. वैसे उस दिन तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि वो फ्लोट क्यों ले रहा है. तो जब हम इनकम्प्लीट, कहीं भी अगर इनकम्प्लीट अगर रहेगा तो वहां पर वो फ्लोट तुम्हारा आ जाएगा. ठीक है, देखो आज हम करके उसको दिखा भी देंगे. ठीक है, टुडे आई विल शो यू दिस. ओके, देन वी हैव द कॉपी. ओके, एंड आफ्टर दिस व्हेन वी प्रोसीड वी हैव data frame. We can create, as I have already told you, we can create data frame with the help of list, dictionary, series, an array and by the help of another data frame. Let's learn how to create a data frame. In order to create a data frame, first we need to import the pandas. Okay, first we need to import the pandas. After importing, we create a data frame. Okay, the first step, let's learn it. सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं. फर्स्ट we need to import pandas as any PPP. Suppose I have taken 3P. Then in order to create the data frame, we will use the constructor called data frame. Okay, but we will use the constructor with the help of pandas. And here we have created the alias. हम यहाँ पर एक alias क्रिएट किए हैं pandas का. alias का मतलब निक नेम. ठीक है, तो ये निक नेम यहाँ पर क्या है, PPP, pandas के थ्रू कॉल करना है. यहाँ पर pandas का निक नेम, ज्यादा अंग्रेजी बोलेंगे तो नहीं समझ में आ पाएगा. ठीक है, तो pandas का यहाँ पर निक नेम हम क्या क्रिएट किए हैं, PPP. तो PPP dot, here we will write dot data frame. Okay, data frame. Okay, mind it, D and F should be capital. ध्यान ये बात का रखना है कि डेटा फ्रेम का D और F कैपिटल होगा. ठीक है,
और ये हमारा डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का सिंटैक्स हम यहाँ पर लिख दिए. So what we have learned here, we have seen that we have created a data frame. Here we have created a data frame. Okay, here we have created a data frame with the help of pandas. Okay, here we have created a data frame with help of pandas. Okay, pandas या फिर हम उसका alias, ALIAS. Okay, alias का मतलब उपनाम. Okay, तो जैसे तुम लोग से किसी का नाम होगा, किसी का स्कूल में कुछ नाम है, घर में कुछ नाम है, that is alias, that is secondary name. So here what I have done, here we have imported alias of the panda, that is PPP. Now what I have done, I have used the constructor called data frame with the help of panda, that is PPP. Okay, I hope it is clear. So let's move to next. Okay, and here you can see I have created. Okay, here you can see I have created a data frame with the help of list. ठीक है, जो हम डेटा फ्रेम को लिस्ट के हेल्प से बनाए हैं. सबसे पहले देखो हम यहाँ पर क्या किए हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम लिस्ट क्रिएट किए हैं. Here I have created a list. Okay, what I have done, here I have created a list. Okay, created a list, right? And in the next to it, what I have done here, you can see here in this line, I have used the constructor. What I have done here I have used the constructor. The name of the constructor, data frame. Okay, here I have used constructor data frame. How I have used? With help of pandas. Okay, with help of pandas. Okay, with help of pandas PD. Okay, and passed a parameter, passed list in parameter, passed list. क्या पास किए हैं इसमें? लिस्ट का नाम क्या है? डेटा. ओके, लिस्ट का नाम क्या है? डेटा. वी हैव पास्ड लिस्ट whose name is data in parameter. List whose name is data. Okay, whose name is data in a parameter. I hope it is clear to you. यहाँ तक दोबारा अगर आज हम पढ़ा रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर हम इसको फ्रेश लिखकर फिर से अगर हम यहाँ पर समझा दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर फिर से अगर फ्रेश लिखकर समझा दें, तो मान लो सपोज आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 4 स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ 4 स्टूडेंट. ओके, फर्स्ट व्हाट आई विल हैव टू डू, import pandas as Ram. Okay, import pandas as Ram. So first I will have to create the list of name. So name I am taking N1. Okay, N1 is equal to, here I am making a list of 5 students. Okay, Ram, Syam, and here I have made Mohan. Okay, Mohan. Here I have created a list. Now I need to create data frame. The name of data frame I am taking, it is df2. Okay, df2 is equal to, what I will do, I will use the constructor data frame along with the pandas. So how I have imported the pandas? I have imported by the name of Ram. Ram dot pandas. What I will write? I will pass N1. Okay, N1. Okay, N1 I have passed. Now what? How, in order to print, I will write print df2.
2. Okay, so it will print, it will give the printing like this. Let me write the output. Output it will give like this. Output it will generate like this. See what will be the output. Here in 0 it will be Ram. Okay, in 1 it will be Shyam. In 1 it will be Shyam, and in 3 it will be Mohan. Okay, I hope it is clear to you. Next, I hope it is clear to you. Next, move to the next part. Creating data frame with the help of nested list. Okay, what we have done, we have created a nested list. Okay, we have created a nested list and we have passed this nested list. We are in a very quick mode revision, so we will not elapse our more time here. Okay, you can see what we have done here. Here we have created a nested list. Okay, and this nested list we have passed. This nested list we have passed here. Okay, this nested list we have passed here, and we have named the columns. Okay, we have named the column as name and age. You can see here we have named the column as name and age, which in turn it is reflected here, which in turn it is reflected here. Okay, I hope it is clear to you. Which in turn it is reflected here. I should make it like this. Okay, column's name is reflected here. Okay, I hope it is clear to you. Then let's move to the next. And here, creating data frame with nested list by assigning column name and data type. I have already assigned the column name. Only what I am doing, I am using the data type. Here I am using an attribute of data frame that is called data type. Okay, D type. Okay, D type is equal to float. Okay, so next, let's proceed because I have to teach something new today also. So I hope I have given you a quick revision. We will stop there at the dictionary. Okay. Now creating data frame with the help of arrays. Okay. So creating data frame from dictionary of array. Okay. So here you can see इस चैप्टर में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग डिक्शनरी का एरे बनाए हैं. ठीक है, हम लोग डिक्शनरी का एरे बनाए हैं और उस एरे से उस एरे को डेटा फ्रेम में पास कर दिए. ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या बनाए, यहाँ देखो डाटा लिखा हुआ है. नेम क्या है, नेम दिस इज द की. डिक्शनरी में ध्यान में आता होगा कि डिक्शनरी में दो चीज होता है, एक की होता है और दूसरा वैल्यू होता है. ठीक है, डिक्शनरी में क्या होता है, एक की और दूसरा वैल्यू. ठीक है, कीज आर ऑलवेज यूनिक. ओके, एक की होता है और दूसरा वैल्यू होता है. तो हम यहाँ पर भी देखो डिक्शनरी बनाए हैं. ठीक है, हियर वी हैव ट्राइड टू क्रिएट डिक्शनरी. नेम इज द की एंड लिस्ट, दिस इज अ लिस्ट, दिस इज अ वैल्यू. ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, थोड़ा ध्यान से इसको पहले समझ लेना. ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो नेम है ये क्या है, दिस इज अ की. ओके, ये नेम क्या है, दिस इज अ की. जबकि यहाँ से हम जो देख रहे हैं ये जो लिस्ट है ये क्या है, डिक्शनरी का वैल्यू है. ओके, ये क्या है, डिक्शनरी का वैल्यू. ओके, so this is key value. Again age is here, key. Again age is here, key, and this is value. ठीक है, तो की वैल्यू. ओके, हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट किए हैं. ठीक है, और उस डिक्शनरी को पास कर दे रहे हैं डेटा डॉट फ्रेम. यहाँ डेटा फ्रेम में हम उसको पास किए और
इस प्रकार से हमारा डेटा फ्रेम बन जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ समझ में ये आ रहा है कि जो की होगा, ठीक है, जो की होगा, जो की है यहाँ पर यहाँ पर कॉलम का नाम बन गया है। ठीक है, यू कैन सी हियर द की, ये नाम बन गया है, और इंडेक्स इधर बाय डिफॉल्ट आ जाता है, और ये वैल्यूज जो देख रहे हो, ठीक है, वैल्यूज आर हियर, यू कैन सी दीज आर द वैल्यूज। ओके, हियर यू कैन सी दिस इज द वैल्यू। ओके, देखो यहाँ पर राम, नारायण, सुधा एंड भास्कर, ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें, यहाँ पर इसी बात को समझना है सबसे ज्यादा, डेटा फ्रेम में सबसे ज्यादा इसी बात को समझना है। देखो ये वाला जो हमारा एज जो लिखा हुआ है, वो एज, वो एज, ये देखो ये सेकंड वाले डिक्शनरी, सेकंड वाला वैल्यू से आया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, let's move to the next. Okay, here again we have created that same dictionary. Okay, here and but here we have provided the index. यहाँ हम सब कुछ वही काम किए हैं, मगर डेटा फ्रेम क्रिएट करने में समय यहाँ पर हम अपना कस्टमाइज्ड इंडेक्स दिए हैं। Here we have used the customized index. You can see here we have used index. Okay, nothing else, same is as that of previous. Let's move to next. Okay, see here, ये इस जगह पर इसी चीज को ज्यादा समझना है। हम फिर से हम इसको समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला हमारा ए एग्जाम्पल, इसको सबसे पहले यहाँ समझना, फिर से हम एरो के मार्क के हिसाब से हम डिमार्क कर दे रहे हैं। देखो हम क्या बताए कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग, मेरी बात ध्यान से सुन लोगे, व्हेन यू आर क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम विथ हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो एक डिक्शनरी में क्या क्या होता है, डिक्शनरी में की होता है और वैल्यूज होता है। ठीक है, तो की हमारा कॉलम का नेम बन जाता है। यू कैन सी टीवी। ओके, नेक्स्ट की इट इज फ्रीज, देखो यहाँ आ गया। ओके, फिर देखो सेम, और एक और यहाँ पर इसमें जो है ओवन। ठीक है, तो पहले डिक्शनरी में और दूसरे डिक्शनरी में, लेट मी डीमार्क इट, देन इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो यहाँ देखो समझना ये है, पहला डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में हमारा की, हाउ मेनी की एंड हाउ मेनी वैल्यूज, 2 की और 2 वैल्यू, टीवी और फ्रिज। जबकि दूसरे डिक्शनरी में हमारा कितना वैल्यू है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, मतलब जो वैल्यू उसमें है वो वैल्यू इसमें भी है, और इसमें एक और नया वैल्यू आ गया है, नया इसमें एक आ गया है, दैट इज ओवन। ओके, so what we have done, we have created 2 dictionaries. ठीक है, we have created, you can see we have created 2 dictionaries. We have created a array of dictionary. हम लोग यहाँ पर भी क्या किए हैं, array of dictionary create किए हैं। array of dictionary में सबसे पहला डिक्शनरी में 2 हमारा है, टीवी है, 2 की है और 2 वैल्यू है। पहला की टीवी, उसका वैल्यू 1, दूसरा की फ्रिज, उसका वैल्यू 2। दूसरे डिक्शनरी में क्या है, टीवी और उसका वैल्यू 5, फिर क्या है फ्रिज, उसका वैल्यू 10। ओके, एंड देन अ न्यू की एंड न्यू वैल्यू हैज बीन एडेड हियर, दैट इज ओवन 20। ठीक है, ओवन 20। तो देखो मेरी बात, टीवी और टीवी, दोनों टीवी, देखो दोनों डिक्शनरी में जो टीवी लिखा हुआ है दोनों आइडेंटिकल सेम है। अगर सेम नहीं रहेगा तो वो नया कॉलम क्रिएट कर देगा। ठीक है, वो क्या क्रिएट कर देगा, इट विल क्रिएट
a new column. It will create a new column. Okay, so it is mandatory that दोनों सेम होना चाहिए. अगर T बड़ा भी लिखे हैं तो उसमें भी बड़ा T और बड़ा भी यहाँ होना चाहिए. ये नहीं कि यहाँ पर छोटा T और बड़ा भी हो जाएगा. ठीक है, अगर ये और ये दोनों सेम रहेगा तो देखो यहाँ पर 1 और 5 यहाँ पर आ जाएगा. अगर जरा भी अंतर रहेगा तो इसके बगल में एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा. ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना जरूरी है. ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये देखना है. ठीक है, दूसरी बात जो याद रखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि यहाँ पर जो एरे ऑफ डिक्शनरी में, जो एरे ऑफ डिक्शनरी में जो हमारा की होगा वो कॉलम का नेम बन जाएगा और जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा. ये बात को ध्यान में रखना. आई होप इट इज क्लियर टू यू. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट. यस सर. थैंक यू. फीडबैक देना चाहिए. नेक्स्ट लेट्स नेक्स्ट सी अगेन वी हैव इंपोर्टेड पेंडास. ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखो हम यहाँ पर क्या लिए. अगेन वी हैव क्रिएटेड. हम लोग क्या क्रिएट किए हैं? टर्म बहुत अच्छा यूज करना चाहिए. अगर टर्म को नहीं ढंग से यूज करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा. हम यहाँ पर क्या क्रिएट किए हैं? एरे ऑफ डिक्शनरी. नाउ व्हाट इज एरे? एरे का मतलब देखो बच्चों, फिर से हम यहाँ पर बता देते हैं. थोड़ा सा फिर से टर्म जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक नहीं होगा. ठीक है, देखो यहाँ पर एरे, इट इज होमोजेनस स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे ले लिए एरे. ठीक है, तो एरे इसी को कहते हैं ना, एरे. दिस इज एरे. होमोजेनस एलिमेंट सेलेक्टेड हैविंग मार्क बाय इंडेक्स. सबका इंडेक्स होता है. ठीक है, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 0 हो गया, इसका इंडेक्स 1 हो गया, इसका इंडेक्स 2 हो गया, इसका इंडेक्स 3 हो गया. यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. A, okay, here we write B, okay, here we write C, and here we write D. Okay, so what is this? This is collection of similar type of data duly marked by index. So 0, 1, 2, 3, it is our index, and A, B, C, D, this is our value. Okay, this is our value. Okay, I hope it is clear to you. Then अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए बी के जगह पर, ए के जगह पर हम ये टीवी और फ्रिज को हम उठाकर यहाँ पर रख दिए. ए वाले में हम क्या लिखे? टीवी 1, फ्रिज 2. दूसरे वाले में हम क्या कर दिए? दूसरे वाले में हम इसको डाल दिए. ठीक है, व्हाट इज दिस? वी आर क्रिएटिंग अ एरे ऑफ डिक्शनरी. ठीक है, एरे ऑफ डिक्शनरी बना रहे हैं. और फिर एरे ऑफ डिक्शनरी से हम क्या बना रहे हैं? एरे ऑफ डिक्शनरी से हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं. ठीक है, तो जब हम एरे ऑफ डिक्शनरी से डेटा फ्रेम जब बनाते हैं तो हमारा जो की होता है, जो डिक्शनरी का जो हम की यूज करते हैं, वो कॉलम का नाम बन जाता है. दिमाग में ये बात को बैठा लेना है. ठीक है, दिमाग. और अगर, ठीक है, अगर दो एलिमेंट, दो डिक्शनरी, दो एरे बनाए हैं, ठीक है, अगर टीवी मतलब अगर इफ इट डिफर्स द न्यू कॉलम विल बी क्रिएटेड. ठीक है, टीवी, फ्रिज और ओवन. यू कैन सी हियर टीवी, फ्रिज. इन द फर्स्ट वन it is TV, fridge, and in the next one the new element is added, that is oven. There is no value of oven in the first dictionary. ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखना कि तुम्हारा जो फर्स्ट जो डिक्शनरी है उसमें ओवन है ही नहीं. मतलब ओवन क्या है? ओवन यहाँ पर 0 है. ठीक है, ओवन क्या है? ओवन यहाँ पर 0 है. तो देखो यहाँ पर क्या है ओवन का वैल्यू? NaN. ओके, नॉट अ नंबर. ठीक है, यहाँ पे ओवन नहीं है. अब इसमें देखो ओवन है 20. यू कैन सी ओवन हियर 20. अगर इसी जगह पर अगर भैरवी अगर हम जो है वो फर्स्ट डिक्शनरी जो
एरे ऑफ डिक्शनरी बनाए हैं, उसके अगर हम पहले एलिमेंट में अगर हम वहां पर डाल देंगे, वहां पर ओवन इज इक्वल टू 10, तो ये जो डेसिमल पार्ट देख रही हो ये हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओनली 10 मिनट इज लेफ्ट। I have got the warning through the Zoom that only 10 minutes is left. Let's proceed to the next slide. Again the same thing you can see. अभी जो हम बताना, जो इतने देर से हम बार बार बता रहे हैं, उस चीज को यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, तो ट्राई टू फॉलो इट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर डेटा फ्रेम इंडेक्स 101 102। ठीक है, हियर व्हाट वी हैव डन, देखो हमारा कितने डिक्शनरी हैं, कितने आदमी थे, तो आदमी यहाँ 3 है, एक डिक्शनरी, यहाँ दूसरा डिक्शनरी, यहाँ हमारा तीसरा डिक्शनरी, और इंडेक्स कितने दे रहे हैं, 2 इंडेक्स दे रहे हैं। बहुत नाइंसाफी है, यहाँ पर इंडेक्स जब हम 2 देंगे और उसमें एलिमेंट 3 है, तो ये बहुत नाइंसाफी हो जाएगी और ये एरर को रिजल्ट करेगा। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, वंस अगेन आई रिवाइज। ठीक है, हम फिर से बता रहे हैं व्हाट वी आर डूइंग हियर इन दिस लाइन, यू कैन सी आई एम क्रिएटिंग एरे ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, एरे ऑफ डिक्शनरी बनाए, एरे ऑफ लिस्ट बनाए, एरे ऑफ एरे बनाए। ठीक है, तो हम जितना बनाएंगे, जैसे अब मान लो एलिमेंट अगर हम 2 रखते हैं, तो जो डेटा फ्रेम में हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे वो भी 2 ही क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि डेटा फ्रेम में हम डाल रहे हैं, ये डेटा में डाल रहे हैं 3 एलिमेंट और इंडेक्स ले रहे हैं 2। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी और वो एरर रिजल्ट करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जब ये रन कराओगे तब बनेगा। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इफ यू फील प्रॉब्लम, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, do feel free to contact me. I am always available, omnipresent on the WhatsApp, omnipresent. Okay, now how to retrieve, ये थोड़ा सा नया चीज आज हम 5 मिनट पढ़ा, 7 मिनट बचा हुआ है, 7 मिनट में हम एक नई चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देख लोगे यहाँ पर। ठीक है, लेट्स ट्राई टू लर्न इट। यहाँ पर ध्यान से अगर देखना तो व्हाट वी हैव डन, यहाँ ध्यान से देखना। ठीक है, here what we have done, this is we are creating a dictionary। ठीक है, ये डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और ये 1 जो लिखा हुआ है डिक्शनरी का क्या है, डिक्शनरी का की है। और यहाँ देखो pd.series, pd यहाँ से सीरीज बनाए हैं। ठीक है, और ये सीरीज यहाँ तक है, सीरीज में इंडेक्स भी है। तो डिक्शनरी में की हमारा 1 है और वैल्यू में हम क्या पास कर दे रहे हैं, सीरीज। ठीक है, सेकंड में हमारा की हो गया 2 और वैल्यू में हम पास कर दे रहे हैं एक नया सीरीज। ओके, और कुल मिलाकर हमारा डिक्शनरी का नाम क्या हो गया, डी, और उस डी को हम इसमें पास कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले भी बताए कि जो डिक्शनरी का की होता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कॉलम का नाम। ठीक है, यहाँ देखो 2 है, ये 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिर उसके बाद जो वैल्यूज होते हैं, वो वैल्यूज यहाँ देखो चले आते हैं। 1 का वैल्यू 1 2 3 एंड 4, यू कैन सी हियर दीज आर दीज वैल्यू, ये सारे वैल्यू वहां पर आ गए। ठीक है, इंडेक्स ABCD, इंडेक्स इधर आ गया। ठीक है, इंडेक्स डिफाइंड इधर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो pd.series 5 6 7 8। ओके, तो 2 वाले का वैल्यू यहाँ आ गया। इंडेक्स सेम है, अगर आप इंडेक्स चेंज करेंगे तो देखो चेंज कर क्या होता है। ठीक है, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट, यू कैन सी, कंटिन्यू टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाउ टू कंटिन्यू टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो रिट्राइव सिखाना था। ठीक है, तो रिट्राइव सिखाना था, तो अब हम लोग अब इसके बाद सेम एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लाए। ठीक है, so what we have done, we have created a dictionary with the help of series।
we have created a dictionary with help of series. डिक्शनरी में दो चीज होता है, एक की होता है, एक वैल्यू होता है। तो डिक्शनरी के की में हमारा लिखा हुआ है 1 और 2, और वैल्यू में हमारा लिखा हुआ, वैल्यूज में हमारा सीरीज पास किया हुआ है। ठीक है, देखो हम यहाँ पर पास किए हैं, और उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग, देखो यहाँ पर pd.data_frame_d हम इसको प्रिंट किए, पूरे डिक्शनरी को देखो हम प्रिंट किए हैं, और ये पूरा डिक्शनरी देखो पूरा जो है वो प्रिंट, सॉरी सिंगल पार्ट को हम देखो यहाँ पर प्रिंट किए हैं, दैट इज आई एम प्रिंटिंग द 2। ठीक है, हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं 2 को, 1 वाले को नहीं प्रिंट कर रहे हैं, सिर्फ 2 वाले को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, 5 6 7 8। ओके, let's move to the back previous slide. Okay, let's move back to the previous slide. This will make you all clear. You can see here it is 1 2 3 A B C D, और इंडेक्स हो गया, और 1 भी है और 2 भी है, मतलब की हमारा 2 की था। ठीक है, और हम दोनों की प्रिंट किए थे। ये वाले में हम सिर्फ किसको प्रिंट किए हैं, जो 2 है। देखो यहाँ पर 2 वाले में क्या है, 5 6 7 8। ओके, देखो यहाँ पर 2 वाले में 5 6 7 8 को प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो हाउ वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट में हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस व्हाट वी डू, वी राइट लाइक दिस। ओके, वी राइट लाइक दिस, print df. This is simply to print the entire data frame. We will use print, और यहाँ पर हम लिखेंगे df, और बड़ी ब्रैकेट में वो की लिख देंगे, जो डिक्शनरी का जो भी की है, 1 या 2, जो की होगा उसी की का नाम यहाँ पर लिख दिए। So how we can retrieve? So what we have learned here, we can retrieve the column, we can retrieve the column by the help of respective key, by the help of respective keys, by the help of respective key. I hope it is clear to you. Next left 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है, और बाकी का हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ज्यादा पोर्शन हमारा रिवीजन में चला गया आज का। ये हमारा जो हम पढ़े आज, हमारा ये पहला टॉपिक था। कल और परसों में हम लोग डेटा फ्रेम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। I hope it would be clear to you. If you have any query, any feedback, any doubt, you are free to ask me through my WhatsApp number, through my telephone number, and I will upload this video on the YouTube. You will refer it, you will read it, you will share it.